Okay, so my name is Masa Harshad Dalvi and आज का जो वीडियो है that is specially for the 10th standard महाराष्ट्र बोर्ड. Just 2-3 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि जो SSC का एग्ज़ाम है that will be or may be in the May month. Yes, you are right. 2021 May month. अभी दिसंबर है. And then January, February, March, April and May. That's all. Good news is you have 5 months. And the bad news is you have only and only 5 months left for your exam. First of all, assume करना बहुत important है, कारण जर आपण assume नाही केलं की exam कधी आहे तर आपण कधी serious नाही होणार. So serious होने के लिए you should really assume when is the exam. So this video again I'm saying for the people who are not serious, and मैं चाहता हूँ कि सब लोग अभी serious हो जाओ, because जिस दिन they declare होगा, जिस दिन तुम लोग का form fill up होगा, उस दिन सब serious होंगे. But अभी से advantage लो. In this 15 days में भी तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो. This is the end of the year. So in this end of the year आपका कितना पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, जैन में कितना होना चाहिए, फेब में कितना होना चाहिए, how to set the exam timetable. Okay, since I have given board exam, I think so 11th time. So surely I will share this. Means my qualification is BSc in physics and the MSc in physics and the BEd. So you can calculate हर एक सेम मतलब हर एक बोर्ड एग्जाम होती है. So 11 board exam. So I will surely share my experience of the board exam बाद में. But सबसे पहला the calculation of the days. So starting with this. So what we have is December is going now. Okay, that's all fine. 2021, especially for Corona. Okay, that's all fine. Okay, ये साल यहाँ पे खत्म हुआ. Then we have a Jan. Okay, then we have the Feb. Okay, then we have your March. Then we have your April, and then we have your May. And assuming कि यहाँ पे तुम लोग का एग्जाम है, date 1 assume करते हैं date 1. Okay, now the days remaining. Okay, so आज का जो date है maybe approx 17 is the date, and the remaining month of 15 days are left. Jan is full of your 31 days, Feb 28 days, then March is of your 31 and April is of your 30. Okay, ये सब अगर तुम लोग calculate करोगे तो you will get something like 166 days remaining for your SSC board exam. 166 लिख के रखो ये कहाँ पे तो, and हर दिन इसमें से एक माइनस करो. Okay, so what we have is the 166 days left for your board exam. I repeat, 166 only. अभी बहुत से लोगों को लगेगा अरे 160 मतलब बहुत है. Yes, ये दिखने में बहुत है, but let me discuss the second point what I have. Okay, second point what I have is, okay, assume कि तुम लोग का एटलीस्ट ये पूरे साल में मीन्स इन दिस इतने महीने जो तुम लोग का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इतने महीने में तुम लोग का एटलीस्ट सी इन 10th standard. Okay, in your SSC what we have is approx 105-110 कुछ लेसन है. Assume करते हैं कि this is the second point, 100 lesson. Okay, 100 lesson, and तुम लोग ने ये पूरे साल में एटलीस्ट 40 lesson तो किया ही रहेगा. 40 lesson you have done, and what is remaining is the 60 lessons remaining. Okay, so 166 first of all 166 जो अप्रैल मंथ है वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज अप्रैल मंथ is the month which is really close to the May. एंड जो मई का है तो मई से अगर 1 मई से तुम लोग का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल के लास्ट 15 डेज यू कैन डू द रिवीजन ऑल्सो. इट्स जस्ट द प्लानिंग ऑफ द नेक्स्ट मीन्स अगर एक को तुम लोग का इंग्लिश का पेपर है तो द एंडिंग के अप्रैल के एंडिंग के 3 दिन तुम लोग इंग्लिश को दोगे, और सेकंड पेपर मराठी होगा तो इंग्लिश के पहले के 3 दिन तुम लोग मराठी को दोगे. तो इट विल बी लाइक अ रेनबो. मीन्स यहाँ पे एक बोर्ड एग्जाम है तो नेक्स्ट मीन्स पहले महीने के 3 दिन यहाँ पे दूसरा बोर्ड पेपर है तो यहाँ के 3 दिन वहाँ पे. सो दिस इज जस्ट लाइक अ रेनबो जो तुम लोग को करना है. सो आई विल नॉट एज्यूम द अप्रैल मंथ. सो 166 minus your 30, what we get is a 136. Okay, 136 days remain for your board exam. Okay, 136.
136 जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों को बोला कि 40 लेसन मान लेते, किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन मान लेते कि तुम लोग ने 40 लेसन पढ़ाई किया, 40 लेसन का पढ़ाई किया। 136 डिवाइडेड बाय योर व्हाट वी हैव डेज रिमेनिंग, ओके लेसन रिमेनिंग 60, आंसर कुछ आएगा 2.2। अभी 136 डेज रिमेन है, मैंने 100 भी नहीं लिया यहाँ पे, मैंने 60, मैं मान के चल रहा हूँ कि 60 लेसन तुम लोग को करना है। मे बी यू कैन टेक अ 50 बट टू बी आंसर अप्रोक्स 2 के रेंज में आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। सो क्या 2 दिन में तुम लोग का एक लेसन हो सकता है? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। डेज दिखने में बहुत बड़े दिखते हैं। लेट अस कंसीडर कि अगर हम लोग 200 दिन भी मान के चलते, अगर हम लोग 300 दिन भी मान के चलते, बिकॉज साल भर होता है, तो अगर 300 अगर 300 को भी तुम लोग डिवाइड करते हो बाय योर 100, तो ऑब्वियसली 3 दिन आता है। तो क्या 3 दिन में तुम लोग का एक लेसन हो पाएगा? लगता है तुम लोग ने मेटलर्जी लेसन नहीं देखा, इज रियली वो लेसन को बहुत टाइम लगता है। सो डोंट सी द डेज, सी योर टारगेट, सी योर लेसन, सी योर पोर्शन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सी द मार्क्स वेटेज देखो, एंड जो ये 2-3 साल के एग्जाम पेपर देखो, तब ये कुछ अच्छा लगेगा। अदरवाइज यू विल सी अरे 136 डेज आर लेफ्ट, बहुत है, एंड देन यू विल डिवाइड लेसन, अरे ये तो कम हो गया। फिर डोंट डू लाइक दैट। ये जस्ट मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, अप्रोक्स, बिकॉज बहुत से बच्चे वो लास्ट मोमेंट पे देखते, तो आई विल से एटलीस्ट तुम लोग को पता चलेगा कि तुम लोग का अभी क्या हुआ। सो दिस वाज माय पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 2 दिन में तुम लोग को एक लेसन करना है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन बाय योर मंथ्स, क्लासिफिकेशन बाय योर मंथ, कौन से मंथ में तुम लोग को क्या करना चाहिए। Okay, so let us begin with this. What I have is, okay, that's all fine. Okay, again, coming back, December, Jan, Feb, then your March, April, and May. Okay, that's all fine. यहाँ पे in December तुम लोग का एटलीस्ट 65 से लेके 75% पोर्शन होना चाहिए, स्कूल में क्लास में नहीं, तुम लोग का खुद का पढ़ाई करके। नहीं सर स्कूल में हो गया, हम लोग स्कूल में नहीं, तुम लोग का पढ़ के कितना हुआ। सो 65 to 75 मस्ट बी गुड स्कोर, आई विल नॉट से गुड स्कोर, मीन्स अगर तुम लोग यहाँ पे इतना करते हो तो यू मे गेट दिस, इतना परसेंट तुम लोग का पोर्शन सिलेबस तुम लोग का होना चाहिए। एंड देन इन द जैन तुम लोग का एटलीस्ट 80% ऑफ पोर्शन खुद का पढ़ाई करके होना चाहिए। एंड देन व्हाट वी हैव इज द फेब, तो 1 से लेके 15 फेब तक तुम लोग ये फाइंड आउट करो कि हम लोग का क्या बाकी है, मीन्स व्हाट इज रिमेनिंग, व्हाट इज मिसिंग, क्या क्या तुम लोग से गलतियां हो रही है। ओके, गलतियां हो रही है इसलिए तो किधर तो 1-2 मार्क्स माइनस हो रहे, गलतियां हो रही है तो किधर तो मार्क्स कम मिल रहे। सो ये गलतियां देखो, बिकॉज ये कोई नहीं कर, हर बार पढ़ाई किया एग्जाम दिया, स्कोर भी उतना एंड सीरियसली अगर वो ब्लैंक फिल नहीं करोगे तो लाइन पूरा नहीं दिखेगा। तो व्हाट आई विल से दिस यू हैव टू डू 1 से लेके 15, मतलब पहले 15 डेज ऑफ द फेब यू हैव टू सी कि तुम लोग गलत कहाँ पे। अगर तुम लोग को 100% नहीं मिल रहा तो किधर तो तुम लोग का कुछ मिसिंग है। ओके, सो व्हाट वी हैव इज नेक्स्ट 15 डेज, ओके 16 to 30, यहाँ पे जो मिसिंग है वो यहाँ पे सेटिस्फाई करो। ओके, सो व्हाट वर द मिसिंग, जस्ट आई विल से fulfill this or the missing part, ये complete करो। जो बाकी दार है ये सब मैंने किया नहीं था, अरे ये मुझे समझ में नहीं आता, तो इधर वो सब खत्म करो। एंड देन मार्च, ओके मार्च, so March what we have is this, okay, so okay, मार्च में from your 1 to 15 कम से कम 3 साल का पेपर सॉल्व करो, बाय हार्ट करो, राइटिंग या कुछ भी करो। ओके, देख के सॉल्व करो, बिना देख के सॉल्व करो, बट करो, बिकॉज तुम लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। एंड मेनी स्टूडेंट नहीं, हम लोग जाके डायरेक्ट दे देंगे द फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम। इट्स रियली बहुत अलग एग्जाम है, अपने लाइफ में ऐसी एग्जाम दी नहीं, बिकॉज हर बार हमें आदत है अरे बेंच आजू बाजू में वही स्टूडेंट्स, हमारे दोस्त, टीचर्स भी वही, स्कूल भी वही, बट बोर्ड एग्जाम इज समथिंग। तुम लोग का स्कूल कौन सा होगा पता नहीं, बेंच कौन सा होगा पता नहीं, आगे कौन है पता नहीं, पीछे कौन है पता नहीं, लेफ्ट राइट कुछ पता नहीं, सामने वी कैन से कि इवन वो सांगपाड़ा में रहेगा, वाशी में रहेगा, नेरुल में रहेगा, तुरबा में रहेगा, इन द नवी मुंबई, इन द हाफ दिस साइड नवी मुंबई, कहाँ पे भी हो सकता है। सो डू टेक सीरियसली एज पर द पोजिशन इन दिस
एसएससी बोर्ड एग्जाम की यस हाँ हम ये साइकोलॉजी होना चाहिए. ओके सो व्हाट वी हैव इज यस दैट्स ऑल फाइन. ओके सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ योर मार्च मीन्स योर 15 से लेके 30. ओके आई विल नॉट से 30, 15 से लेके 30 एंड अगेन अ प्लस 1 से लेके 15 ऑफ योर अप्रैल, 1 से लेके 15 ऑफ योर अप्रैल, अ 1 मंथ ड्यूरेशन, मतलब इसका हाफ 30 days purely for the revision of what you have done. And then अप्रैल के 15 से लेके 30 पूरे दिन पैरेलल, जस्ट आई सेड लाइक अ रेनबो, पैरेलल टू योर दिस मे में जो भी होगा. अँड मी परत सांगतो सिरियस व्हा, मे मध्ये एक्झाम आहे असं ॲझ्युम करूया. ओके दॅट्स ऑल फाईन. ओके दिस इज एज पर मी एंड अगर ये फॉलो करोगे तो यू श्योरली गेट 70 से लेके यू 80 से लेके या 85. एंड नाउ पीपल सोचेंगे सर 90% नहीं मिलेंगे. सी 90% उसी को मिलता है जिसके पास पहली बार पूरा पोर्शन साल भर जिसने पढ़ाई किया. एंड दूसरी बात फॉर 90% यू शुड हैव टू थिंग्स. वन इज योर ब्रेन एंड अभी बोले सर ब्रेन तो हमारे पास है, यूज ऑफ द ब्रेन. एंड सेकेंड इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. ये दो चीज तुम लोग के पास है तो यू श्योरली गेट मोर देन 90%. ओके बिकॉज अभी मैंने बोला प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बहुत से स्टूडेंट को लगा रहेगा अरे ये कौन सा चीज है. तुम लोग ना 2 साल पहले का बोर्ड का पेपर देखो एंड तब तुम लोग को पता चले अरे मैंने किया क्या है और ये आया क्या है. तो क्वेश्चन वे सेम बट रियली बहुत ट्विस्ट किया था एंड मुझे बहुत पसंद है 2 साल पहले का 10th स्टैंडर्ड का पेपर. एंड इट्स रियली नाइस. पोर्शन चेंज हुआ है 2 साल पहले एंड इज I think of 5 or 6 years I'm teaching to this 10th standard of the Maharashtra board. So ये 5-6 साल का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है कि बोर्ड में क्या आ सकता है क्या नहीं. इसका वीडियो भी हम लोग बनाएंगे बट आज का जो वीडियो है स्पेशली द प्लानिंग ऑफ योर 166 days, प्लानिंग ऑफ द 136 days, प्लानिंग ऑफ द लास्ट 30 days. ओके नाउ ये तो तुम लोग का हो गया ऑफ द आई विल से कि यस ये एकेडमिक तुम लोग को क्या करना है. एंड सिंस आई एम द साइंस टीचर लेट अस सी कि तुम लोग साइंस में क्या कर सकते हो. मीन्स इन फ्रॉम योर 10 लेसन्स तुम लोग को क्या करना चाहिए और तुम लोग को क्या नहीं करना चाहिए. सिंस डेज आर लेस सो वी हैव टू थिंक कि व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कांट. सो लेट अस बिगिन विद दिस. Okay, 10 lesson. Okay, this is your 10th standard का टेक्स्ट बुक. It's really a nice new textbook. Okay, so what we have is old and new में फर्क ये कि पहला एक ही टेक्स्ट बुक था, एक ही टेक्स्ट बुक में दोनों पार्ट है. एंड अभी दिस इज योर साइंस पार्ट 1 एंड वी हैव द साइंस पार्ट 2. Okay, let us start with this. A 10 lesson. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, 10. So first of all, सबसे पहला तो मैं इझी लेसन बताऊंगा. सर्वात सोपे लेसन कोणते आहे ते पहिला बघूया. सर्वात सोपे लेसन इझी लेसन्स. ओके सो व्हाट आई विल से इज शॉर्ट एंड इजी. तो आई विल जस्ट फर्स्ट पिक नेम इज दैट इज 6th lesson, दैट इज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. सबसे स्मॉल एंड सबसे सस्ता. इससे सस्ता और इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक योर डीमार्ट एंड बिग बाजार. ओके सो व्हाट वी हैव इज नेक्स्ट इज समथिंग which is not much hard except the sum that I will say lesson number 5 ही जो 12 साल के बाद है वो हम लोग को था. हम लोग के ज़माने में जब when I was in 10th standard means 10 more than 10 years ago तभी हम लोग को ये हीट लेसन था. उसके बाद ये 5 साल में तो हीट का नामो निशान नहीं था एंड अभी ये न्यू पोर्शन में हीट दिया एंड आई रियली लाइक द होप एपरेटस. आई होप कि ये साल होप एपरेटस आएगा. 2 साल से आ रहा नहीं तो इसका चांस बहुत ज्यादा है. So what we have is the second most useful lesson and the good. अरे इसको वैसे भूलिए. Okay, ये कच्चा नींबू है ये. Okay, so 3 most easy lesson. Then what we have is see बाकी lesson में थोड़ा कुछ करना पड़ेगा. So this way I will say easy. Let us see some medium lesson. A medium lesson and the useful lesson and the connecting lesson. Gravity. A medium lesson. मैं यहाँ पे I think यहाँ पे मैं E लिखता हूँ. Easy and easy. एंड यहाँ पे मैं M लिखता हूँ. M इज फॉर योर मीडियम. ये मीडियम है. देन योर करंट. ओके दिस इज ऑल्सो योर मीडियम.
then your car, ये भयानक है. Okay, seventh is a big piece, man. Seventh is a big piece. Seventh is surely a big piece. मैं seven भी बोलता हूँ. Seven is for the big piece. Is also big piece. Is also big piece. This is big piece मतलब 5 मार्क के सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये लेसन से आते हैं. Then what we have is periodic table. Again something a medium, and this I will say is not much. I will say this is also a medium for me. Okay, ये सब हो गया. मतलब overall 1 2 3 4 लेसन मीडियम है. इजी 1 2 3 लेसन इजी है. एंड बिग पीस 1 2 3 आर योर बिग पीस. ओके, नाउ कौन सा लेसन करके क्या फायदा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर डूइंग समथिंग ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के सेम फॉर्मूला लेसन नंबर 10 में है, एस्केप वेलोसिटी. एंड देन इफ यू आर डूइंग दिस लेसन नंबर 3, तो इसका फायदा तुम लोग को डायरेक्ट 8 लेसन एंड 9 लेसन में, ये तीनों लेसन ये बहुत मीन्स एंड बहुत से रिएक्शन भी रिपीट हुए. इफ यू से लेसन नंबर 3 एंड व्हाट वी हैव द कार्बन कंपाउंड्स में, ये श्योरली द रिएक्शन रिपीट हुआ. सो एंड नेक्स्ट इफ यू आर डूइंग दिस 6, तो ऑब्वियसली वो 7th में तुम लोग का हेल्प करेगा. एंड देन व्हाट, लेट मी सी दिस this metallurgy, obviously ये connected is really a good example. And last, okay, this is all fine. This is 4th lesson is electronic, इसका कोई खास संबंध नहीं है. lesson number 2 is also purely for periodic table. So ये था physics 1 का planning, and this is all about. Okay, so first of all my question after this video is हाउ मच % यू एक्सपेक्ट कि तुम लोग को कितना चाहिए कि इससे मुझे इतना मेरा टारगेट है. यू कैन कमेंट ऑन दिस. मेरा 70%, 80%, 90%, दिस इज माई टारगेट. एंड 166 डेज में मुझे क्या करना होगा. तो मे बी आई विल एक्सप्लेन समथिंग इन द मोर डिटेल इफ यू वांट, और यू कैन जस्ट सजेस्ट, यू कैन जस्ट कमेंट कि यस मुझे ये लेसन करना है. बट यू कैन श्योरली आस्क द क्वेश्चन of the physics, no matter is 1 or no matter is somewhat 2, since I'm master in physics, so मुझे मेरा 1 बहुत favorite है. 2 I will try, but surely I will try this one, and that's all for today. And please हे सर्व बघा, सिरियस घ्या आणि मार्च नाही, मे मध्ये तुमची बोर्ड एक्झाम आहे असं समजून अभ्यास करा. Okay, that's all fine for today, and yes, surely we'll wait for, I think my next video will be of the detailed classification of 10 lesson. मतलब ये एक लेसन है, मान लो कि ये एक लेसन है. दिस इज लेसन नंबर 1 ग्रेविटी. तो ग्रेविटी में बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है ज्यादा? केपलर पूछा गया है बहुत बार. देन सम्स कहाँ से आते हैं ज्यादा. देन देयर इज वन मोर टॉपिक जो 10th लेसन में, दैट इज योर एस्केप वेलोसिटी. ये फॉर्मूला सेम वहाँ पे. देन ऐसा कौन सा टॉपिक 9th में हुआ है, जस्ट लाइक ये 3 फॉर्मूला 9th में हुआ है. जस्ट वी हैव टू रिप्लेस योर A by योर G. तो ऐसे बहुत कुछ शॉर्टकट्स है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. सो अगर 10 लेसन तुम लोग का पढ़ के हो गया, देन यू विल रियली सी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है. एंड 10 लेसन पढ़ के नहीं हुआ, देन यू विल सी हाँ ये पहला करना है, बाकी का बाद में कर सकते. सो दिस इज end of the video presently, and surely I will come with next video while explaining शायद से ये 10 लेसन, अगेन आई एम सेइंग कि ये 10 लेसन का एक्सप्लेनेशन समथिंग इम्पोर्टेंट. एंड बोर्ड एग्जाम, सिंस मैंने अभी बोला कि 5-6 साल हुआ मुझे ये 10th स्टैंडर्ड में, तो मुझे पता है हाँ ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ये क्वेश्चन बोर्ड में कभी नहीं है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है. सो बाय यूजिंग माय नॉलेज, प्रोबेबिलिटी और एनालिसिस, आई विल श्योरली हेल्प यू. काही जर प्रॉब्लेम असेल या डाऊट असेल तर कमेंट करा. ओके, दॅट्स ऑल फाईन. बाय फॉर टुडे. बाय.